Today on 26th of September, I'll be talking about musical trauma from Nirojim Ajmer. Childhood musical trauma. Childhood trauma which is in regard of music. Now, your age may be 70, but when you were child, that means maybe at the age of 40, or you may be 40 right now, then when you were at the age of 14 or you were 7 or 5, then something happened in regard of music. In regard of some musical instrument, you wanted to play some musical instrument, or you wanted to sing, or you wanted to draw or paint or write shairi or poetry, do some creative activity, but either your mother yelled at you, or your father criticized you, or someone in your relative or neighbor mocked you, someone in your school or college or at your workplace made fun of you, because of which you stopped pursuing it, but you always wanted to do it because it is the reflection of the divine. What you can see here is the reflection of divine. Basically, when I was playing this song, it was about 2015. This is from 2015. So when I bought this guitar, I was at the age of 28 or 29. I bought this guitar and I was criticized by my fellow colleague, who himself was an IIT, and now he is an officer, uh, state, some GST officer now he's, and he was into music and so many things. He used to play guitar also, electric guitar. He was into electronics. He was into hacking. So many things he was into. So he was giving me gyan that I should not begin music journey at the age of 28 or 29. So he did not know about my background, how much I wanted to play. But since he was in my surrounding, he was trying to discourage me. But he did not know how great I was. I was a superior person. That's why his opinion or his remark did not matter, in spite of the fact, however great musician he was. However great musician he was, if I have to play, if I want to explore and try and experiment, then I have to. How can you stop me? Array, when I was at this age, when I was 28, 29, this was Delhi. I had bought this shirt from my money. I had bought this guitar from my own money. I had bought this red color. I had bought this sofa come bed from my own money. So I had got degree. I went to school. I went to college. I studied well. I got degree. I got job. I earned money. Now at least let me do things that I wanted to do. Who the hell are you to criticize me? So my point is, if in your childhood somebody criticized you, then you are always scared of taking an action, even an atomic action towards it. एटॉमिक एक्शन टुवर्ड्स इट मींस क्या होता है? एक्चुअल एटॉमिक एक्शन की बात कर रहा हूं मैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाइंग द गिटार और बाइंग कीबोर्ड, बाइंग पियानो, बाइंग फ्लूट, बाइंग बुक्स हाउ टू लर्न म्यूजिक, बाइंग डीवीडीज. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट collecting resources, which is not wrong thing at all, but the core thing will come when you actually pick the flute. Where's the flute? When you actually pick the flute and you blow into it, and then you do it and do it and do it till you fucking die. जब तक आप मरने जा रहे तब तक आपको इससे करते रहना होता, तब जाके इस लेवल तक का, जिस लेवल तक का हमारा गिटार है, पियानो है, तबला है, बांसुरी है, जर्मन है, स्पेनिश है, संस्कृत है, ये पहुंचता है. सुपीरियरिटी का मार्ग यहां तक पहुंचता है. ये सब तो किस हासिल नहीं होगी हमको? एटोमिकली हमने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को, जैसे हमें भी चाइल्डहुड ट्रॉमा था, वैसे हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे. तो हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा को एटोमिकली काटते 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 हमको तो इतना चाइल्डहुड ट्रॉमा था कि हमारे घर में मेहमान आते थे, तो मेरी 2 सिस्टर्स हैं, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि मेरी 3 चोरियां हैं, 2 तो यो दिख रही सामने और एक ये मेरे अंदर छुप रही है मेरे कमरे में. वो मैं था. तो मतलब मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं करता था, तो मेरी मम्मी भी मुझसे इंटरेक्ट नहीं करती थी. मतलब वो एक लंबा पॉइंट हो जाएगा कि हाउ आई हैव बीन इग्नोर्ड ऑल माई लाइफ एंड हाउ यू हैव ऑल्सो बीन इग्नोर्ड ऑल योर लाइफ. क्योंकि मेरी समस्या थोड़ी ना है. कभी तेरी माँ ने तेरे को 5 मिनट बिठा के बात किया है कि दिन में समस्या क्या है, तेरे दिल में क्या चलता है? तेरे कभी बाप ने 5 मिनट बिठा के पूछा है क्या कि स्वतंत्र होकर बोलो तुम्हारे मन में क्या चलता है? उसको कोई मतलब नहीं. उसको बस डुप्लीकेट करने से मतलब, आपके बाप को, आपकी माँ को बस मिमिक करने से मतलब.
वो सब लोग स्कूल भेज रहे हैं क्योंकि मेरे बाप ने मेरे को स्कूल भेजा, तो सब लोग स्कूल भेज रहे हैं, तो मैं भी अपने बच्चे को स्कूल भेजूं। फिर सबकी शादी हो रही है, सबके कॉलेज में जा रहे हैं, तू भी कॉलेज जा, सबकी शादी हो रही, तू भी शादी कर, फिर तो बच्चा पैदा कर, तू भी बच्चा पैदा कर। तो बस ये जो बाकी सब लोग कर रहे हैं उसका मिमिकिंग करते हैं आपके माता पिता। आपके माता पिता आपसे कम्युनिकेट नहीं करते, ठीक है। तो मेरे तो कोई कम्युनिकेशन नहीं था, तो मैं तो कुछ भी क्रिएटिव एक्टिविटी नहीं कर सकता इस घर में, प्लीज अंडरस्टैंड। गाना छोड़ो, बजाना छोड़ो, ढोलक छोड़ो, माउथ ऑर्गन छोड़ो, फ्लूट छोड़ो, गिटार छोड़ो, अरे चिल्ला चिल्ला के भाषणबाजी करना, यहाँ पर गली चौराहे के चुनाव लड़ना छोड़ो, राइटर बनना छोड़ो, स्पिरिचुअल प्रीचर बनना छोड़ो, क्रांतिकारी बनना छोड़ो। अरे बात नहीं कर सकता था मैं, किसी के सामने आने में डर लगता था। आज मैं कच्छा पहन के पूरा देश घूम लेता हूं। उस टाइम पे जो शॉर्ट्स होते हैं ना, वो शॉर्ट्स ही मैं नहीं पहनता था, और शॉर्ट्स पहनकर तो मैं ये जो घर का गलियारा है ना उसके आंगन में कभी आता नहीं था, क्योंकि बाहर लोग देख लेंगे मुझे, तो मतलब मुझे शर्म आती थी। बात है 10वीं क्लास की। 10वीं क्लास में तो लाइक स्कूल में हमारे पैंट चलती थी, लेकिन एनसीसी में शॉर्ट्स चलते थे, हाफ पैंट। और जो मैं अंडरवियर पहनता था वो बड़ी वाली पहनता था, जो लॉन्ग थोंग होते हैं। तो उसका जो निचले वाला हिस्सा था, वो जो एनसीसी की चड्डी होती थी उसके अंदर नीचे थोड़ा थोड़ा दिखता था। तो जिससे लड़कियां नहीं शर्माती है हर चीज में, अब बार बार हमने वो ठीक करती रहती है, अपनी चुन्नी ठीक करती रहती है, अपने कपड़े ठीक करती है, तो मैं उस प्रकार से अपने कपड़े ठीक करता रहता था। आप सोचिए मैं कितना टिमिड, कितना शाय, कितना दमित, कितना इग्नोर्ड बच्चा था। मेरे से कभी किसी ने पूछा नहीं कि क्या चाह रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कौन छू रहा है, कौन मिल रहा है, कौन नहीं छू रहा है, कौन आपके साथ वायलेंस कर रहा है, कौन वायलेंस नहीं कर रहा, कौन आपका दोस्त है, उससे क्या बात करते हो, अखबार में क्या पढ़ते रहते हो, क्या कटिंग करते रहते हो, और फिर उसके बारे में क्या सोचते रहते हो, और बाहर जाके किससे मिलते हो, लाइब्रेरी में क्यों जाते हो, सरकारी लाइब्रेरी में क्यों जाते हो। 15 रुपए की सालाना की लाइब्रेरी में मैं जाता था, कौन जाएगा बच्चा। अबे आज का बच्चा तो बस मौका देखता है कि स्कूल से भगे, फिर ट्यूशन से भगे, फिर इधर उधर आवारागर्दी करें। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे अंदर भी बहुत बड़ा चाइल्डहुड ट्रॉमा था, लेकिन हमने तुक्के में ये सब कुछ चीजें नहीं सीख ली हैं। हमने एक एक पल का सदुपयोग किया है, एक एक दिन को, एक एक घंटों को एक एक हजार करोड़ रुपए के बराबर माना है, और उसको सदुपयोग किया है, और उसमें कुछ एक्ट किया है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल, एटॉमिकली पॉसिबल एक्ट हमने किया है। तो ऐसे हमने काटा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक फीमेल का। वो फीमेल हो गई 40 साल की, उसने 10 साल से अपने घर के अंदर गिटार भी लेकर आ रखा, पियानो भी लेकर आ रखा, तबला भी लेकर आ रखा, बांसुरी भी लेकर आ रखी, माउथ ऑर्गन भी लेकर आ रखा, और वायलिन तो जंग खा गया, तबला भी लगभग लग बचा हुआ है, और गिटार भी जंग खा गया, और कीबोर्ड बचा हुआ है। बस बेसिकली कीबोर्ड बचा है, क्योंकि कीबोर्ड को आराम से ढक के रख देते, अदरवाइज तबला तो खत्म हो गया, जंग खा रहा, ढप 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 करता है, और तबला बेसिक दिमक खा गया, और वायलिन जंग खा गया, वायलिन एकदम खत्म हो गया, मतलब रखे रखे खत्म हो गया। आप समझ रहे हैं, मैं इसको बहुत बड़ा अपराध कहता हूं, क्योंकि हमने न्यूरोजिम का धर्म अपनाया है, न्यूरोजिम की साधना की है सारी जिंदगी। न्यूरोजिम का मतलब अपना एक ऐसा स्पेस बनाना, यदि कोई आप पर एहसान करे, ये 38 साल से मेरी जो माँ है ना, इसने कभी एहसान नहीं किया, अब एहसान किया है 15 सितंबर से। बात ये नोट कर लेना, 15 सितंबर 2025 से लेकर अभी 25 सितंबर 2025 हो गया है, और ये आगे भी होगा। जस्ट ए मिनट, ये आगे भी होगा, 5-10 दिन और है। तो इस पर मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, हितेश शाक्य की मां ने हितेश शाक्य पर जिंदगी में पहला और आखिरी एहसान ये किया है कि 15 सितंबर 2025 से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक अकेला इस घर में छोड़ दिया है। क्योंकि अकेला तो मेरी मां ने मानसिक रूप से हमेशा ही मुझे छोड़ के रखा। फिर जब मैंने घर छोड़ दिया तो फिर मैं अकेला ही हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है ना, इतना गार्डन नहीं है, इतनी छत नहीं है, इतना चांद नहीं, सूरज नहीं। मुंबई आओ तो आपका चांद सूरज सब चले गए, शांति चली गई। और छोटे शहर में आओ तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं ना कि अपने को प्रॉपर घर भी मिले, टीवी भी मिले, इंटरनेट भी मिले, आंगन भी मिले, जाने वाले लोग भी मिले। क्योंकि यहाँ पे जब तक मम्मी है, बेसिकली मम्मी की प्रेजेंस की वजह से ही वो जो ट्रॉमा होता है ना वो एक्टिव रहता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मतलब मेरे केस में मेरी मम्मी, मैं अपने बाप की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा बाप तो विद्वान था, एक बहुत बड़ा महान था, ठीक है। लेकिन मेरी माँ को विद्वानों का सम्मान नहीं, महान लोगों का सम्मान नहीं, बेवकूफों का सम्मान मेरी माँ को। और मेरी माँ खुद भी बेवकूफ, इस वजह से मेरे बाप का सम्मान किया नहीं, और मेरे बाप को मुझसे मिलने दिया नहीं। तो वो तो जब मैं 12वीं क्लास में आ गया सन 2003 में, जब मैं अपने बाप से मिला पहली बार, तो वो नायक फिल्म देखी है ना,
पहली बॉल पे सिक्सर। तो मेरे बाप ने पहली मुलाकात में सिक्सर मार दिया। हं, उसने बोला क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैंने बोला 12th क्लास में हूँ, ये मैथ पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मतलब मैथ्स में क्या है? मैथ्स के अंदर ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है। तो वो वाला डिफरेंशियल की किताब दिखाओ, वो डिफरेंशियल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की किताब, मतलब वो चैप्टर निकालो। मैंने बोला पहली बॉल पे सिक्सर मार दिया इसने। तो ऐसा नहीं होता कि होम स्कूलिंग के लिए यू नीड टू बी परफेक्ट एट ऑल द थिंग्स। होम स्कूलिंग के लिए आपको बस एक ही चीज चाहिए होती है, आपका आपकी नियत होनी चाहिए कि कल में काम नहीं करना है, सम डे में काम नहीं करना है। आज समय का सदुपयोग कर सकते हैं क्या? जो आपकी अभिव्यक्ति है, जो भी चीज सीख रहे हो या बाकी चीज अभी तक सीखी है उसकी दिशा में, या सीखना चाहते हो उसकी दिशा में, कुछ एक कदम आगे बढ़ा सकते हो क्या? आज 10 मिनट निकाल सकते हो क्या? 5 मिनट निकाल सकते हो क्या? अरे 1 मिनट निकाल सकते हो क्या? ये मेरा प्रोफेशन है, वीडियो बनाना और लेक्चर देना। उसके अंदर से अभी मैं भी 30 सेकंड निकाल के दिखाता हूं। मैं 30 सेकंड निकालता हूं जर्मन के लिए। Ich spreche Deutsche und ich spreche nicht sehr gut Deutsch. Ich aus Frankreich und Schnitzel ist gut. Leider gut. Guten Tag, guten Abend। तो बस हो गया ना। अगर ये नहीं होता तो ये कौन से मिनट बज रहे हैं अभी भाई साहब? अभी 6:48 हो रहे, तो 6:47 और 6:48 के वो जो 30 सेकंड थे, वो तो आपने ऐसे गवा देने थे जैसे आपने गवा दिया 2025 अभी तक का पूरा 2024 आपने ऐसे गवा दिया। 2023 उस औरत ने 2025 गवा दिया, 2024 गवा दिया, 2023 गवा दिया, गिटार को टच भी नहीं किया, 2022 गवा दिया, पियानो को टच भी नहीं किया, 2021 गवा दिया, तबले को टच भी नहीं किया, 2020 गवा दिया, माउथ को टच भी नहीं किया। कभी टच भी नहीं करना, बस है ना, ले लेके खरीद के रख लेना और किताबें उतारे खरीद के रख लेना और डीवीडी वगैरह खरीद के रख लेना, सम डे का इंतजार करना, लेकिन आज के आज अभी के अभी इस पल को ऑनर नहीं करना बाय ओपनिंग द कीबोर्ड एंड टचिंग इट एंड ट्राइंग टू डू समथिंग, बिल्डिंग रिलेशनशिप विद इट। नहीं नहीं नहीं, इंतजार करना सम डे व्हेन आई विल हैव टाइम from my work, from my home, from my kid, from my Diwali, from my Holi, from my Eid, from New Year, from my job, from my school, from my college, from my old age, from monsoon. Then I will join some proper classes. Then properly I will learn when I will fucking die. अभी मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था मनीष भटनागर का जो 40 साल का लड़का था, एक टैलेंटेड लड़का था जो गिटार बजाना जानता था, पियानो बजाना जानता था, माउथ ऑर्गन बजाना जानता था, रेसिंग करना जानता था, जिम्नास्ट था, कुंफू कराटे करना जानता था। इतना कुंफू कराटे करना जानता था कि जो जहां पर कैंप चला करते थे कुंफू कराटे के, उसको सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर घर तक आ जाते थे। इतना जज्बा उसके अंदर था। लेकिन उसका बाप गुलाम, नरेंद्र मोदी का गुलाम, अखबार का गुलाम, सरकार का गुलाम, व्यवस्था का गुलाम, जो चला आ रहा है उसका गुलाम। कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना, नया कुछ ट्राई नहीं करना है। जो मेरे बाप ने किया, वो मेरे बाप के बाप ने किया, और जो उसके बाप ने किया, जिसके बाप ने किया, जिसके बाप ने किया, उसके बाप ने, 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 जो सबके बाप ने किया वही मैं करूं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वही मेरे बाप ने किया। मेरे बाप ने क्या किया? जूता मार मार के सरकारी नौकरी के लिए दिमाग खराब किया, तो मैं भी अपने बच्चे का जूता मार मार के सरकारी नौकरी की दिमाग खराब करता हूं। तो उसने उसकी सारी आर्टिस्ट्री साइड में कर दी और सरकारी नौकरी के लिए दिमाग खराब किया। तो सरकारी नौकरी 11वीं 12वीं का उसका वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर बन गया वो लड़का, पॉलिटिकल साइंस का। अब क्या करने लगा बाकी की जिंदगी में? बाकी की जिंदगी में वो दारू पीने लगा, बाकी की जिंदगी में गांजा मारने लगा, सिगरेट पीने लगा है, और पीते पीते 40 साल के अंदर मर गया। कभी हॉस्टल की बात नहीं कर रहा हूं भाई साहब, वो घर में ही रहता था। और उसका जो बाप है वो मनीष भटनागर, वो कहीं सुबह सुबह तैयार होकर जॉब पे नहीं जाता था। वो सरकारी एक म्यूजिकल स्कूल बन गया था, जिस म्यूजिकल स्कूल को के पास पैसे नहीं थे, सरकार के पास पैसे नहीं थे उसका रेंट देने के लिए, तो घर के अंदर ही खोल लिया था। तो सन 2000 से सन 2025 25 साल तक तो उसका बाप, 40 साल के लड़के का जो बाप है ना, 25 साल तक, 2000 से लेकर 2025 तक 25 साल तक तो घर के अंदर ही ऑफिस चला रहा था। उसके बावजूद भी उसने कभी अपने बच्चे को बुलाकर बातचीत नहीं करी। सन 2020 में उस बेटे ने अपने बाप को कह दिया कि तुम मेरे बाप नहीं हो, मतलब बस बायोलॉजिकल संबंध है, अदरवाइज आपका कोई संबंध नहीं है मेरे से। वो संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि 5 मिनट भी बिठाकर उसके बाप ने उससे पूछा नहीं
कि तुम्हारे जीवन में क्या चलता है, तुम जीवन में क्या कराना चाह रहे हो। वो सिर्फ अखबार पढ़ता था और टीवी देखता था और अपने सरकार का गुलाम बना रहता था। तो सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, उसको डिपेंड करता था। तो उसने अपने बच्चे का बलात्कार कर दिया। अब उसका बलात्कार कैसे हो रखा था? उसके बाप के द्वारा। क्योंकि जब वो, अभी मैं उसके पास पहुंचा ना यार, मतलब उसकी हालत ऐसी हो गई थी। अब बच्चा, मतलब नौकरी कुछ है नहीं और पेंशन कुछ है नहीं, और मतलब वो गवर्नमेंट पोजीशन पे था, बट वो जो पोजीशन ऐसी थी ना, उस पोजीशन के अंदर गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी थी, लेकिन वो गवर्नमेंट वाली पेंशन नहीं थी। तो उसके पास पेंशन नहीं, बेटा मर गया उसका। उसको बस जिंदगी में क्या चीज आती है, वो बीए किया हुआ है सितार के अंदर। प्लीज अंडरस्टैंड। क्योंकि कुछ कुछ रिश्तेदार सितार वगैरह या म्यूजिक वगैरह के अंदर कुछ अकेडमिक काम कर लेते, प्रॉपरली वो अकेडमिक्स के पास जाके, टीचर के पास जाके सीखे हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने उसके उंगल कर दी कि तू भी एक बीए कर ले, एमए कर ले। असल में वो गाना गाना चाहता था, लेकिन जब, अरे कितना बताऊं यार, माँ बाप, उसका बाप भी चूतिया। उसने बहुत सारे बच्चे पैदा कर दिए, मतलब इतने सारे बच्चे पैदा कर दिए कि सुबह सुबह सबको तैयार होने के लिए बाथरूम के जल्दी जल्दी बाथरूम इस्तेमाल करना होता था, और सबको ये तैयार होकर अपने काम पे जाना होता था, स्कूल कॉलेज जाना होता था। तो ये जो आदमी है ना, मनीष भटनागर, ये जब नहाता था तो नहाते नहाते गाता था, तो इसका दादा चिल्लाता था कि जल्दी निकल। इसको गाने का ट्रॉमा बैठ गया भाई साहब। दैट्स द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। तो आप भी कमेंट्स में लिखिए, कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप कुछ गाना गा रहे हो और किसी दोस्त ने, किसी मम्मी ने, पापा ने, चाचा ने, ताई ने, अड़ोसी ने, पड़ोसी ने, स्कूल वाले ने, रिलेटिव ने, किसी ने ताना मार दिया हो, और फिर आपको शर्म आने लगी हो गाना गाने में। ये देखो, ये दिल्ली के अंदर खुलेआम गाना गा रहे हैं, मेरे जैसा शर्मीला बच्चा दिल्ली के अंदर गिटार लेके खुलेआम गाना गाएगा क्या? ये सब कराने में वो कोई टीचर नहीं आया, कोई हीलर नहीं आया, स्वयमेव किया है। अपने बलबूते पर तिनका तिनका कर करके एटॉमिकली एक एक पल को, एक एक क्षण को ऑनर करते हुए, some fucking day I'll be financially free and some fucking day some teacher will come to teach me that I did not fucking wait for fucking stupid citizens and parents। ठीक है, तो ऐसा आपका ट्रॉमा होता है। तो ये बात तो कब बता रहा मुझे, सुनो। ये मनीष भटनागर नाम का आदमी, जिसके बाप ने उसकी जिंदगी खराब कर दी और उसने अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी, ये जो बात है, वाकया, ये बात मुझे वो कब बता रहा, जब उसके पास कुछ आमदनी बची नहीं। तो मेरे को उसमें तरस आया, तो मैं सोचा कि मैं इसके पास सितार सीखने जाता हूं। ठीक है, क्योंकि सितार उसको आता था, लेकिन कितना अकेडमिकली आता था। उसको कोई बोलो कि सितार बजा के सुनाओ, सितार बजा के नहीं सुनाएगा। उसको कोई पूछे कोई गाना बजाना आता है, कोई गाना बजाना नहीं आता। उसको बस राग इमन बजाना आता है, और बेसिक राज, भैरव वैरव, दो पांच राग, जो कि किसी इंसान को 1200 रुपए उसकी महीने फीस लेके, उसको महीने में, मतलब हफ्ते में 2 बार या 3 बार क्लासेस देकर, उसको बुलाकर, उसको फिर नोट्स वोट्स लिखा के, जितना मतलब इसमें लगता है ना, मतलब वो 1-2 महीने के बाद तो भाग ही जाता है। बताऊंगा भी क्यों भाग जाता है वो बच्चा। सितार तो कौन ही सीखेगा आज के टाइम पे, वो भी जिस प्रकार से वो सिखा रहा था, वो मैं बताऊंगा कैसे सिखा रहा था, वैसे कौन सीखेगा उस आदमी से। तो मैं आपको बता रहा था कि वो सितार में क्यों पड़ गया। पहले मैं आपको बताता हूँ सितार में वो इसलिए पड़ गया क्योंकि वो चाइल्डहुड म्यूजिकल ट्रॉमा था उसका। तो वो गाना गाने की तरफ बढ़ नहीं पाया। मतलब वो ये भी नहीं बोल पाओगा अपने माँ बाप से कि मैं तो गाना गाना चाहता हूँ, सितार में म्यूजिक क्यों डाल रहे हो। तो उसको ठेल ठेल के सितार में डाल दिया। सितार में उसको टेक्निकली कर करके, अकेडमिकली कर कर बीए करवा दिया, फिर उसको एमए करवा दिया, फिर उसको वही शिक्षक की जॉब मिल गई। तो शिक्षक होता क्या है भाई? शिक्षक क्या होता है? शिक्षक ने जो इधर से कॉपी किया वो उससे कॉपी किया, वो उधर कॉपी कर देगा, वो पढ़ा देगा। धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तीन तीन ता दिन दिन दा। अभी इसी को बैठ के रगड़ते रहो 1 हफ्ते तक। ठीक है, फिर ताली मारते रहो, फिर ऐसे करते रहो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये सब करते रहो। ठीक है, अब उसे मेरे से कॉपी बनवा ली। तो भाई साहब मैं गया 3 दिन सिर्फ उसके पास, उसमें मेरे जैसे आदमी को, अब तू बोल, अब तू बोल, तू बता, तू पेशेंस की बात कर रहा है ना। अबे मेरे ऐसा आदमी जो 10 भाषा बोल सके, जो 5 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सके, जो आईआईटी का आदमी 3 चुनाव लड़ चुका है, और 20 साल के अंदर 20 लड़कियों का प्यार प्राप्त करने के लिए कितना आनंद पेशेंस चाहिए होगा, वो आदमी का पेशेंस हिल गया उस सितार टीचर के सामने जाके, जब उसने कॉपी बनवाई और 3 दिन तक वो कॉपी के अंदर लिखवाता रहा। वो
कि सितार का ये तंदू होता है, ये सितार का ये बंबू होता है, ये सितार की गांड होती है, ये सितार का लंड होता है। अरे माँ की चूत बहन जो सितार की तेरी, तू कुछ बजा के तो सुना मुझे, मेरा इंटरेस्ट उसमें दिला। इंटरेस्ट नहीं दिला रहा वो तो बस थ्योरी लिखवाते चले जाओ। उसने वो गिटार सितार पकड़ा सिखा दिया और उसने ये पकड़ना सिखा दिया। अब उसने ऐसा बोल दिया, ये हो गया दा, ठीक है, ऐसे आपने किया टिंग तो दा, और ये रा। बस अब वो मेरा दिमाग खराब करे भाई साहब, समझना मैं आपका दिमाग खराब करूंगा अभी कैसे उसने सिखा दिया सितार को आप ऐसे करोगे, मतलब ऐसी सितार आ गया आपका पूरा, इसको ऐसे पकड़ मिला और आपने ऐसे मिजराब पहन के उसको ऐसे किया टिंग, तो ये दा हो गया और ये रा आ गया। बस अब निकालो किस, अब सितार साइड में रखो, आप कॉपी उठाओ भाई साहब। और मैं अगर उसको पूछ लू ना कि कोई सितार में कोई गाना वाना तो सुना दे यार, कुछ नहीं सुना भाई, उसको आता ही नहीं और ना उसको मतलब, वो सोच रहा है कि सितार का गाने से क्या संबंध है। सितार तो एक शैक्षणिक एक शास्त्रीय संगीत है, इसके लिए तो दादिन निंदा, और इसके लिए दा और रा, दा रा भाई साहब। अब उसने एक्सरसाइज लिखाना शुरू करी, ठीक है, दा 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 दा। ये 16 हो गए भाई सब। फिर रा 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 दा रा दा 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 दा रा रा दा रा रा दा। अरे भैया ठीक है कर लूंगा एक्सरसाइज, मना का कर रहा हूं, लेकिन तू मेरी उससे दुश्मनी क्यों करवा रहा है इंस्ट्रूमेंट से, उसको मनहूस क्यों बना रहा है मेरे से, मेरे सामने उसको मनहूस क्यों बना रहा हूं, उस इंस्ट्रूमेंट को, इस यात्रा को मनहूसियत क्यों बना रहा है मेरी जिंदगी की। असल में क्या होना चाहिए था, असल में सितार यहां पर होना चाहिए था। और जब मेरी अब जैसे ये बजा लेना, जब मेरी मर्जी थी, जब मेरी मर्जी थी बजा लेता मैं, किसी को तो पता होता, मतलब थोड़ा बहुत भी ईमानदारी से आदमी उसके साथ सहज होने की कोशिश करे तो आदमी हर कुछ चीज सीख लेता, ये तो हमारे जीवन का सार है। लेकिन वो हरामी आदमी क्या बोल रहा, नहीं नहीं ये तो म्यूजिक इंस्टीट्यूट के हैं, और वो पढ़े सड़ रहे भाई साहब, 25 साल से उसी क्लास में कोई नहीं आ रहा, और जंग खा रहे, दिमाग खा रहे उसके सारे हारमोनियम तबले और सितार, पुराने टूटे सितार से वो मेरे को सिखा रहा। मैं उसको बोल रहा मेरे घर पे ले जाकर रख दे, बढ़िया से तेल वेल लगाकर मालिश वालिश करके रखूंगा इसको, और जब मेरी मर्जी होगी, जब मेरा शौक होगा, जब मेरे अंदर से परमात्मा बोलेगा कि मैं शाइन करने को तैयार हूं, तब मेरे सामने सितार होना चाहिए। तू बोल रहा है कि नहीं मैं हर हफ्ते आऊं, और अब मैं सोमवार को आऊं, फिर मंगलवार को नहीं आऊं, फिर बुधवार को आऊं, फिर गुरुवार को नहीं आऊं, फिर शुक्रवार को आऊं, और वो जब आऊं तो तू मेरे को क्या सिखाएगा, ये दा 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 रा 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 दा 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 रा 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 दा दा रा दा दा रा दा दा रा दा 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 रा दा दा रा दा दा रा दा दा रा दा रा दा रा दा रा, ये सब कर रहा हूं मेरे को, ठीक है। तीसरे दिन तो वैसे सनक चढ़ गई मेरे को, मैंने बोला तेरी ऐस की तैस इधर ला, ठीक है, मैंने कॉपी तो हटाई, मतलब ऐस की तैस क्यों, क्योंकि मैं तो गिटार बजा ही रहा हूं इतने साल से, मैं तो माइंडफुल आदमी हूं, मेरे अंदर तो परमात्मा का प्रकाश है, और मैं ईमानदार आदमी हूं। बेईमान आदमी वो बोलता है जिसको, बेईमान आदमी वो बोलता है जिसको बताया गया है कि ये व्यवस्था है, और उसको क्वेश्चन नहीं करता है। ईमानदार आदमी क्वेश्चन करता है कि जब मेरे मन में मैं खुद सोचूं कि सितार कौन से गाने में बज सके, तो मैं तो ये सोचूंगा ना, रघुपति राघव, टो 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 टो, तो मैंने बजा दिया टो 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 टो, मतलब थोड़ा बहुत उसको बस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करने के में समझने आने की जरूरत थी। वो एक इंजीनियरिंग वाला काम है जो मम्मी करती है, मतलब इंजीनियरिंग वाला काम नहीं, मजदूरी वाला काम है जो मम्मी करती है, बच्चे की टट्टी साफ करती है। बाप क्या करता है, गधी की तरह वहां पर गुलामी करता है, और उससे पैसा कमा के लेके आता है, और बच्चे की फीस भर देता है, और ये कच्चा दिला देता है, और ये ट्यूशन की फीस भर देता है, और ये फीस भर देता है, वो फीस भर देता है, और सारे मजदूरी वाले काम जो है ना मम्मी पापा करते हैं। लेकिन जिस जो एक प्रेम वाला काम है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है और उसकी दिशा निर्धारित प्रशस्त करने के लिए मैं आसपास कौन सा माहौल बना सकूं, ये जो सिंगल मदर्स होती है ना, डिवोर्स ले लेकर जाती हैं, ये भी मेरे को बहुत आके बोलती है, अरे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बच्चे को पालना पड़ता है, अकेले ही होता है। अरे भाई साहब, जिंदगी में कुछ मैनेज करके नहीं रखोगे तो जिंदगी मेहनत, इतनी मेहनत में गुजरेगी। इट्स ऑल अबाउट सेटअप। आपने प्राथमिकता पे लिया ही नहीं है कि अपने घर में खाना पीना और बच्चे का एजुकेशन और
बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्शन और घर के अंदर विद्वान लोगों का आना जाना। घर में विद्वान लोगों का आना जाना तो है नहीं। और विद्वान अगर मर्द से प्रॉब्लम है तो विदुषी को पकड़ना, विदुषी से मतलब नहीं है भाई साहब। जो जो एक तो ये जो डिवोर्स औरतें होती है ना, साफ साफ बोल रहा हूं भाई साहब, स्टेटमेंट दे रहा हूं, डिवोर्स औरतें दूसरी औरतों से इतनी जलती हैं, मतलब वो जली झुलसी हुई औरतें, जो डिवोर्स औरतें झुलसी हुई है, उसको अब बाबा ने झुलसा दिया, ठीक है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक ऐप से लड़का देख लिया, शादी कर ली, फिर मतलब मैं तो उसको एक ऑर्गेनाइज्ड रेप बोलता हूं। मतलब जब लड़की का मिलन नहीं कई लड़कों के साथ में, इंटरेक्शन नहीं, और बाप लेकर नहीं गया है, अपने बाप ने, अब बेटी जब हुई होगी 18 साल की या 20 साल से पकड़ लो, 20 साल से 25 साल में उसकी शादी होती है, 5 साल होते हैं जब जिस मर्द के साथ में उसको सारा जीवन बिताना है। और बाप का तो जीवन का उद्देश्य यही है, लड़की किसी लड़के से ना मिले, लड़की किसी लड़के से ना मिले। अबे तो पता कैसे चलेगा कि लड़की को पता कैसे लगेगा लड़के। अबे यार ये बात बोल के बड़ी है मेरे को। तो मतलब बाप कुछ काम करता नहीं है, बाप एक ऑर्गेनाइज रेप करवा देता है। तो वो जो औरतें आती है ना, वो मेरे को डिवोर्स के बाद आके बोलती है कि बड़ी मेहनत होती है बच्चा पालने में और घर संभालने में, ये होता है। तो भैया बच्चे को पालने के अंदर आपने वो सेटअप तो बनाया नहीं ना न्यूरोजिम का, और अपने आप को भी सेटअप कर बनाया नहीं अब न्यूरोजिम का। न्यूरोजिम मतलब कि आपके आत्म विकास का, आपके विकास का एक सेटअप जो आपने भी बनाया नहीं, आपके बाप ने भी बनाया नहीं, संसार में कोई बनाता नहीं है। सब लोग डुप्लीकेट करके चूती की तरह माइंडलेसली अपना जीवन जीते हैं। तो मतलब ये मैं क्यों बता रहा था, तो वो, तो मैंने वो लिया, सदघुपति राघव राजा। ओ, भाई साहब क्या साक्षात कांड फटी। एक 70 साल का चूतिया बुड्ढा जिसने जिंदगी झंड करी है सितार के अंदर, और अपने आप को एक अखबार के अंदर सरकारी गुलामी की जिसकी जिंदगी जुटी ना भाई साहब, उसका ऐसा पानी छुड़ा है ना मैंने कि मैं कल का छोकरा उसके सामने जाके नींद लगा दिया भाई साहब। वो चूतिया तो सबको आके यही राग चपकाता रहता था, अरे मीट तो ना मास्टर लेवल पे जाके आती है, और ये उसमें आती है बहुत हाई लेवल में मीट। अबे मीट के चूतिया है क्या, चूतिया है क्या? अबे मीट यारी तेरे सामने मैंने मीट लगा दी, मेरे को पता भी नहीं था कि मीट कहते हैं। मतलब मीट क्या है, उसको तार को यहीं से खींच दिया, अरे बेंडिंग द नोट है जो चूतिया की तरह। तो मैं आपको बता रहा हूं ना, तो ये सारी कहानी मेरे को सुना रहा था वो। तो मैं उसको पूछ रहा था कि तो सितार मतलब क्या है, ये राग यमन बस, इसके आरो कर लो, अवरो कर लो, पकड़ कर लो, और बस यही करवा रहा तू 40 साल से, यही कर रहा और करवा रहा। जो सामने आ रहा उसका जिंदगी तू ये बोल लो झंड कर रहा, दारा दा कर करके, और ये राग यमन पकड़ लो, इसका आरो कर लो, इसकी अवरज कर लो, अवरो कर लो, इसकी पकड़ कर लो। गाना एक आता नहीं बजाना। ठीक है, मैंने बोला कि आप आपके पास में कोई आता तो है नहीं, कम से कम मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूं ताकि कुछ ऑनलाइन, नहीं नहीं, उसको आता ही नहीं इतना बजाना कि मतलब वो कुछ वीडियो बना सके और वीडियो में किसी को आकर्षित कर सके कि यार देखो मैं बजा रहा हूं, आप भी बजाओ, मेरे से सीखो। तो ये मैंने उससे पूछा फिर क्या कर रहा हूँ जिंदगी में, तो वो बता रहा है कि सितार तो मैं कभी करंट नहीं चाह रहा था, पूरी दुनिया से अकेले में जाके, वो भी अकेला और मैं भी अकेला, तब जाके उसने अपने राज खोले, असलियत वाले, ईमान वाले। इतने घुसने के बाद, जब इतना दारादा कराने के बाद उसने मेरा इतना दिमाग खराब किया। मैं वहां गया उसके पास स्कूटी लेके गर्मी के अंदर, धूप के अंदर, सितार सीखने के लिए। उसने मेरा दिमाग खराब किया, तब जाके वो मेरे को बता रहा, इतनी कीमत चुकाने के बाद, कि मैं तो कभी सितार बजाना नहीं चाह रहा था। 70 साल के चूतिए ने अपने बच्चे की जिंदगी खराब करके, अपनी बीवी की जिंदगी खराब करके, अपनी बेटी की जिंदगी खराब करके, और उसके जैसे लाखों करोड़ों चूतियों बुड्ढों ने अपनी जिंदगी खराब करके, ये बुड्ढा मेरे को बोल रहा है कि मैं तो कभी सितार बजाना नहीं चाहता था, ये करना चाहता था, गाना गाना चाहता था। तो आप समझ गए ना भाई साहब, चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से, चाइल्डहुड म्यूजिकल ट्रॉमा की वजह से लोग गा नहीं पाते हैं, लोग कुछ बजा नहीं पाते हैं, लोग अपने शर्म के अंदर डर के मर जाते हैं। और चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, इंसान को लेजी बनाता है, उसके अंदर अक्रेशिया पैदा करता है, उसको एक्शन लेने से रोकता है, उसको कोई क्रिटिसाइज करेगा, उसको कोई डिमोरलाइज करेगा, उसकी मौसी को पता चल गया कि इसने तो ये पोस्ट डाल दी, ये तो ये एक ही इनकम करने की कोशिश कर रही है, वो तो गाने की कोशिश कर रहा है, ये यूट्यूब चैनल बनाने की कोशिश कर रहा है, ये चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है, वो मेरा मजाक उड़ाएगा, वो मौसी उससे बात करेगी, मेरे स्कूल वाले को पता चल जाएगा, मेरे सर को पता चल जाएगा, ये मेरे बारे में वो सोचेगा, वो मेरे बारे में वो सोचेगी, ऐसा सोचेगा 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 सोचेगा। इसके अंदर अपनी जिंदगी, एक काम करो तुम सारे के सारे मादरचोद अपनी माँ चुदाओ।